రాష్ట్ర వ్యాప్త సమాచారం ఏపీ రన్అప్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సామాజిక సమానత్వమే లక్ష్యం, సాధికారతే సర్కార్ ధ్యేయం. కర్నూలు సభలో చంద్రబాబు నాయుడు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో పూర్తయిన ఎమ్మెల్సీ నామినేషన్ల పర్వం, ప్రచారం కోసం పరుగులు తీస్తున్న అభ్యర్థులు. రైతుల నోట మట్టి కొడుతున్న దళార్లు, అధికారుల అండతో సాగిపోతున్న మోసాలు. కాసులు కురిపిస్తున్న బూడిద, లక్షలు ఆర్జిస్తున్న దళార్లు. సింగరేణిలో విద్యుత్ వెస్టేజ్ పై స్పెషల్ స్టోరీ. సామాజిక సాధికారత కార్యక్రమానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీకారం చుట్టారు. కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు సర్కార్ను మరింత చేరువ చేసేందుకు యత్నాలు మొదలుపెట్టారు. ప్రభుత్వం అందించే పథకాలు లబ్దిదారులకు చేరడంతో పాటు ప్రతి సామాజిక కార్యక్రమంలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయాలన్న లక్ష్యంతో చంద్రబాబు ఇప్పుడు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శ్రీ కామినేని శ్రీనివాస్ మంచినీరు, మాతా శిశువులకి మంచి పోషకాహారాలు, అలాగే స్కూళ్లలో, పాఠశాలలో పెద్దలు మనందరం ఏపీలోని పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు నిర్మాణాత్మక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఏపీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు చెప్పారు. కడప జిల్లాలోని మైలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన ఆయన పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం చెట్లు పెంచే కార్యక్రమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నామన్నారు. అలాగే చెరువుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నట్లు వివరించారు. ఈ పర్యటనలో రాజ్యసభ సభ్యులు సీఎం రమేష్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. నిర్మాణమైన మైలవరం డ్యామ్ కానివ్వండి, గండిపేట రిజర్వాయర్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా పోతురేపేట ఇటు గండిపేట జిఎన్ఎస్ఎస్ ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2 ఇవన్నీ కూడా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు గత వారం రోజులుగా హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ జీడిపల్లి దాకా మొత్తం ఏరియల్ సర్వే అయిపోయింది. మళ్ళీ జీడిపల్లి నుంచి మరి మన మదనపల్లి వరకు కూడా ఏరియల్ సర్వే చేసి మళ్ళీ జిఎన్ఎస్ఎస్ లో రేపు పొద్దునంతా కూడా ఏరియల్ సర్వేతో కర్నూలు నుంచి వచ్చి మరి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకల్లా రైతులతో ముఖాముఖి డ్యామ్ ఏదైతే గండికోట డ్యామ్ దగ్గర రేపు జిఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా గండికోటకి పూర్తి స్థాయిలో ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, ఈ సంవత్సరం పడ్డ కష్టాలు వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా ఏ విధంగా అధిగమించాలి. రాయలసీమ కరువు ప్రాంతం ఈ 4 జిల్లాలు కూడా అత్యంత దయనీయంగా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాయి. అందుకనే పోలవరం లిఫ్ట్ తీసుకుని 8,500 క్యూసెక్లు ఇక లోక్సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, किस दिशा में हो रहे हैं और किस गति से हो रहे हैं, उसका उल्लेख किया है। ये बात सही है कि कई आदरणीय सदस्यों को लगता होगा कि ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। मैं इसको सकारात्मक रूप में देखता हूं और विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्य इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, इन अपेक्षाओं का महात्म्य है। अपेक्षाओं का महात्म्य इसलिए भी है कि आपको भरोसा है कि शायद समस्या का समाधान इसी कालखंड में होगा, तो ये अच्छी बात है। कुछ ये भी बातें आई हैं कि भाई आप तो हमारी योजनाओं को ही नाम बदल रहे हो। मैं नहीं मानता हूं कि मुद्दा योजना का या योजना के नाम का है, मुद्दा समस्या का है।
योजना नहीं है, पुरानी है, इसका तो विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि समस्या पुरानी है। और इसलिए हमें जो समस्याएं विरासत में मिली है, उन समस्याओं का समाधान करने के रास्ते हम खोज रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये तो हमारे योजना थी, आपने नाम बदल दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर आलोचना नहीं करनी चाहिए, आपने गर्व करना चाहिए, आपको आनंद होना चाहिए कि चलो भाई, समस्या के समाधान में कुछ बातों में यहां के लोग हो या वहां के हो, पहले वाले हो या नए वाले हो, सबकी सोच सही है, दिशा सही है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, मैं मानता हूं। और दूसरा, कभी कभार, अब मुझे याद है एक बार हम पर आलोचना बाहर हुआ करती थी कि भाई आजादी के आंदोलन में आप कहां थे। तो एक बार अटल जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। अटल जी ने कहा, भाई अच्छा बताओ, 1857 के स्वातंत्र संग्राम में आप कहां थे। तो ये चीजें ठीक है, कुछ पल तो ठीक लगती हैं। अब आप निर्मल भारत की चर्चा कहते हैं, वो कहते हैं आपने स्वच्छ भारत ले आए। अब मैं पूछता हूं कि 1999 में अटल जी ने टोटल सैनिटेशन का प्रोजेक्ट लगाया था, कार्यक्रम चालू किया था। क्या निर्मल भारत उसी योजना का दूसरा नाम था क्या? और इसलिए मैं समझता हूं मुद्दा समस्या है, नाम तो मुद्दा नहीं है। और इसलिए स्वच्छता एक समस्या है हमारे देश में, और स्वच्छता ज्यादा हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई है। और मैं जब स्वच्छता अभियान की बात करता हूं, तब मेरे दिल दिमाग में वो गरीब है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि गंदगी के कारण जो बीमारी फैलती है, औसत एक गरीब को 7,000 रुपए का खर्च आता है। अगर हम, और स्वच्छता की जिम्मेवारी हम सबकी ज्यादा है, और अगर गरीब का औसत गरीब का 5 का परिवार है तो 35,000 रुपया। स्वच्छता का दूसरा संबंध हमारे नारी के सम्मान के साथ है। आज भी गांव में मां बहनों को खुले में शौच जाना पड़े, अंधेरा का इंतजार करना पड़े, इस तरफ उस तरफ का मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारी माताओं बहनों के सम्मान का है, उनको जीने का एक अधिकार देने का है। और इसलिए स्वच्छता, जब उन चीजों को याद करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये हमें करना होगा। बालिकाएं स्कूल छोड़ देती है, पढ़ाई छोड़ देती है, क्यों? एक प्रमुख कारण ध्यान में आया, और वो कारण ये था कि स्कूल में गर्ल चाइल्ड टॉयलेट नहीं है। सवाल किसी को दोष देने का नहीं है, इस समस्या का समाधान खोजने का है। और इसलिए स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाया है। तो मैं, ये 3 चीजें मेरे मन को हमेशा आंदोलित करती हैं। और सिर्फ स्वच्छता अभियान ये कोई उद्घाटन समारोह नहीं है, ये निरंतर करने का काम है, और हम सबको करने का काम है। हम में से कोई नहीं है जिसको गंदगी पसंद है, लेकिन स्वच्छता का आरंभ मुझे करना चाहिए, उस पर हम जागरूक नहीं है। क्या 125 करोड़ देशवासियों को इस काम में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? और मुझे खुशी हुई, कल सुप्रिया जी ने अपने भाषण में कहा था कि एक अच्छा अभियान है, हम एमपी कैसे जुड़े। सामने से उन्होंने पूछा हाउस में,
हम कैसे जुड़े? मैं मानता हूं हमें जो एमपीलेट फंड मिलता है और हमें कल्पना नहीं है कि जन सामान्य इस काम को कितना पसंद करता है। मुझे मीडिया ग्रुप के लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हमने केदारनाथ की कैलेमिटी में काम किया, धन संग्रह किया, हमें 4 करोड़ रुपए मिला। हमने गुजरात में भूकंप हुआ, हमने काम किया, लोगों ने हमको 3 करोड़ रुपया दिया। लेकिन अभी हमने स्वच्छता को लेकर के हमारे टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया, हमें लोगों ने 400 करोड़ रुपए दिए। और हम राजनीति में हुए उन लोगों से मैं कहूंगा, अगर आप वोट के हिसाब से भी करते हैं तो समाज को ये बहुत ही मनपसंद काम है, और अगर समाज नीति से करते हो तो इससे बड़ा स्वांतः सुखाय कोई काम नहीं हो सकता है। और इसे नाम ये रहे वो रहे, इससे ऊपर उठ करके समस्या न रहे उस पर हम केंद्रित करेंगे तो मैं समझता हूं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कल एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, 80 घाट सफाई करने गए थे, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं कि रोऊं, इसलिए कि आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे? और दूसरा, करीब 3 महीने से 80 घाट की सफाई चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गंदगी होगी जिस 80 घाट को लेकर के वाराणसी की पहचान है। मैं आपका आभारी हूं। और लोहिया जी मैं मानता हूं मुलायम सिंह जी की बात को। लोहिया जी स्वच्छता का आंदोलन चलाते थे। आप लोहिया जी की कोई भी बात देखेंगे तो स्वच्छता के लिए देश में महात्मा गांधी के बाद पूरी ताकत से आवाज उठाई हो तो लोहिया जी ने उठाई थी। और मैं मानता हूं कि क्योंकि लोहिया जी ने उठाई थी इसलिए मोदी जी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लोहिया जी ने अच्छी बात कही है तो मोदी जी ने भी उस रास्ते पर चलने में गर्व करना चाहिए। और इसलिए कितना कूड़ा कचरा हुआ होगा, इतने समय के बाद भी सफाई नहीं हो रही। आपको हैरानी होगी, हमारी विदेश में एम्बेसीज, हमारी सुषमा जी ने सभी देशों को चिट्ठी लिखी एम्बेसीज को, ये स्वच्छता अभियान भारत में शुरू हुआ है, आपकी एम्बेसी का हाल जरा देखो। और मुझे जो एम्बेसी से फोटोग्राफ आए हैं कि एम्बेसी के पहले हाल क्या थे, अब क्या है। जहां हमारे लोग रहते थे वहां गंदगी के ढेर थे, कागज पानी में भीग करके पत्थर से बन गए थे। सरकारी दफ्तरों में व्यवस्था नहीं है क्या? है, स्वभाव नहीं है। और इसलिए एक पवित्र काम है जिस काम के लिए हम लगे हैं, और ये काम इस सरकार का, इस सरकार के मुखिया का नहीं है, ये काम 125 करोड़ देशवासियों का है। आपने जिस नाम से इस काम को बढ़ाया मैं उसका भी अभिवादन करता हूं। आपने अब तक जो किया मैं उसका अभिवादन करता हूं। इन चीजों में विवाद का विषय नहीं हो सकता है। और लाल किले पर से ये कहने का सामर्थ्य मुझ में था। मैंने कहा था ये देश अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे, अब तक जितनी सरकारें रही हैं, उन सबके योगदान से आगे बढ़ा है। लाल किले की प्राची से भारत की सभी सरकारों की बात की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं 9 महीने में हमने आकर के सब कर लिया है, ऐसा दावा करने वाले हम नहीं है। और नहीं हम ये बात मानते हैं कि देश 1947 15 अगस्त को पैदा हुआ था। ये देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने
मजदूरों ने, किसानों ने इस देश को बनाया है, सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती है, जाती है, देश सरकारें नहीं बनाती। देश जनता जनार्दन के सामर्थ्य से बनता है, जनता जनार्दन की शक्ति से बनता है। और राष्ट्र अपनी चीती से चलता है, अपनी फिलॉसफी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है, और भारत का मूल तत्व है एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। भारत का मूल तत्व है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भारत का मूल तत्व है। सबकी भलाई की बात यहां होती है, और इसलिए ये देश आज जहां भी है, सरकारें आएगी, जाएगी, बनेगी, बिगड़ेगी, देखिए इसके आधार पर नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि आप दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, पंचायतों के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। क्या हुआ था? असम इतना भव्य विजय हो रहा है, क्या हुआ जी? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे क्या? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी इतिहास में। इवन आपातकाल इतना भयंकर संकट था, लेकिन कांग्रेस के हाल इतने बुरे नहीं हुए थे जितने इस बार हुए। अगर एक्ट के कारण आप जीतने वाले होते और किसानों को पसंद आया होता, तब जीत जाते। और इसलिए कृपा करके आप दो तर्क बोलने के लिए ठीक लगता है, उस तर्क से आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें समस्याओं का समाधान खोजना है, यहां पर मंथन करके रास्ते खोजने हैं। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे, या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है कि इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है। और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं। और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, तो हम मानते हैं
कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। कभी कभार भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करें, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं में ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यहीं पर हम सीमित हो जाते हैं। और हम तो, मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो? क्या देश में ऐसी कोई समस्या न हो सकती है जो तू के मैं से बाहर निकल करके समस्याओं के समाधान के रास्ते खोज सके? भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाएं। और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है, नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं, तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि परमात्मा ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जिसमें कोई कमी ही न रहे। मनुष्य का इतना तो सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या ना हो कि 5-7 महीने के बाद 5 साल के बाद उभर करके आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे। और जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब ये बात तय होती है कि जो अफसरशाही है उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर ही नहीं रहता है, प्रायोरिटी करने का मौका नहीं मिलता है। और हमारी कोशिश है कि सरकारें पॉलिसी ड्रिवन हो। इंडिविजुअल के व्यू के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती है। और भारत के संविधान के दायरे में सब चीजें होनी चाहिए और तब जाकर के समस्याओं के समाधान होते हैं। उदाहरण के तरफ कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 का ऑक्शन हुआ है और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। तो उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी।
मैं ये नहीं कहना चाहता वो ये दिन के समय हुआ, उनको क्या करना चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं, और रास्ते खोज करके, और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है जिसमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाए, और इसके लिए आप उत्तम से उत्तम सुझाव दें। इस विषय को लेकर के मेरा समय मांगेगा तो मैं आपको समय दूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप भी हमें गाइड कीजिए कि भाई इस भयंकर समस्या से निकलने के ये रास्ते हैं चार। शासन व्यवस्था देखेगी उसको, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को हम मुक्त कराएं, और हम मान के चलें कि हो क्या रहा है। यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की है। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था, उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था काले धन पर। सुप्रीम कोर्ट कर्ता के सम्मान करने से हम चूक गए। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताए हम काले धन के लिए एसआईटी बना देते? 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। काले धन की बात आती है तो स्विस बैंक की चर्चा आती है। मैं श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं, उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया, और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण जानकारियां हमें एक्सचेंज करने के लिए उनको राजी कर लिया, और उसके कारण अब वहां की बैंकों की जो जानकारियां हैं वो पाने का हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं वित्त मंत्री जी को अभिनंदन करता हूं। इतना ही G20 समिट में आप भी जाते थे, हम तो पहली बार गए। हमारे लिए तो कईयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने G20 का क्या उपयोग किया? G20 समिट के अंदर जो संयुक्त डिक्लेरेशन हुआ उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ G20 ने जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना चाहिए, और उसमें हम सहयोग करेंगे, और काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हम मिलकर के जिसको दबाव डालना है डालेंगे। इसका निर्णय G20 समिट में करवाया। हमारी कोशिश, और इस रास्ते से हम भटकने वाले भी नहीं हैं। ఇక లోక్సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై ప్రసంగించారు. అలాగే సమస్యలను కాలానుగుణంగా పరిష్కరించుకోవాలని, సమస్యలన్నీ చర్చల ద్వారానే పరిష్కారం అవుతాయని, అలాగే అందరూ స్వచ్ఛ భారత్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇదంతా మొత్తం వాజ్పేయి హయాంలోనే చేపట్టామని, బాలికలు బడికి వెళ్లడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు, బాత్రూమ్స్ లేక, దీన్ని గమనించే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్వచ్ఛ భారత్ ని ప్రవేశపెట్టిందని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగించారు. ఇక ఇది బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్తే. వైద్యం
జంక్షన్ లో నీ జంక్షన్ లో నా ఫంక్షన్ పెడితే పిల్లో గోల పెడతవే తల్లో. బోల్ బేబీ బోల్ 6 ఈ రోజు రాత్రి 9 గంటలకు మీ జెమినీ టీవీలో. పవర్డ్ బై వాక్మేట్ ఫుట్వేర్, వాక్ విత్ కంఫర్ట్ మరియు వీకో టర్మరిక్ క్రీమ్. గొంతులో గరగర వస్తే గాగల్ టీ లేదా సాధారణ బెల్లతో ఉపశమనం లభించవచ్చును. అలా లభించకపోతే తీసుకోండి స్ట్రెప్స్.